everybody, how are you? Welcome back to my channel. Today we are going to study the chapter Androcles and the Lion. Long ago in Rome lived a man called Androcles. He was a slave. Slaves were forced to work for their masters. They worked hard all day. They were given very little food and were treated cruelly. The meaning of this paragraph is एक बार की बात थी। एक मैन था, रोम में रहता था। उसका नाम था एंड्रोकल्स। वो एक स्लेव था। स्लेव मतलब गुलाम। और वो अपने मास्टर के लिए उसको फोर्स किया जाता था उसके काम करने के लिए। मतलब वो करना नहीं चाहता था लेकिन उसे करना पड़ता था क्योंकि उसके मास्टर उसे फोर्स करते थे। और वो पूरे दिन मेहनत करता रहता था। उसे बहुत कम खाना दिया जाता था और उसे बहुत बुरी तरह से बिहेव किया जाता था। One night, Androcles ran away from his cruel master. He said, "I can't bear this cruelty anymore. If I run away to another country, I won't be a slave and I will be a free man. I will find work and be happy." Androcles reached a forest as the sun rose. He found a cave and hid in it. He knew that soldiers from Rome would soon start looking for him. The meaning of this is एक बार रात में एंड्रोकल्स भाग गया उसके क्रूअल मास्टर से। उसने बोला, अब मैं इसे सहन नहीं कर सकता। अगर मैं दूसरी कंट्री में चला जाऊं तो मैं कोई गुलाम बन के नहीं रहूँगा। मैं खुले में जीऊँगा और कोई भी मुझे कुछ नहीं कहेगा और मैं काम ढूंढ लूँगा कोई और खुश रहूँगा। फिर एंड्रोकल्स एक फॉरेस्ट में चला गया। जैसे जैसे सूरज उगा और उसे एक गुफा मिली, वो उसके अंदर छिप गया। उसे पता था कि जो सोल्जर होते हैं रोम से वो जल्दी ही आएंगे उसे ढूंढने के लिए। Suddenly, Androcles heard a noise. "What's that noise? A bear? A lion? I can't even run out of here." Androcles was afraid. Then he saw a lion walking into the cave. It was limping. It lay down near the mouth of the cave. When Androcles walked up to it, it did not move. The lion was busy licking one of its paws. A long thorn was stuck in it. The meaning of this is एकदम से एंड्रोकल्स को एक आवाज़ सुनाई दी। उसने बोला, ये आवाज़ कैसी आवाज़ है? क्या ये कोई भालू है? क्या ये कोई शेर है? मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। एंड्रोकल्स डर गया। उसने एक लायन को देखा, एक शेर को देखा जो केव के अंदर घुस रहा था, यानी गुफा के अंदर घुस रहा था। वो लिम्पिंग कर रहा था, मतलब वो ठीक से चल नहीं रहा था। ऐसे अजीब तरह से वो चल रहा था। एक पैर से ही वो आराम से चल पा रहा था लेकिन दूसरे पैर से वो चल नहीं पा रहा था। अजीब तरह से चल रहा था। तभी वो केव यानी गुफा का जो माउथ होता है, जो उसका मुंह होता है जहाँ से हम एंटर करते हैं, वहीं पे लेट गया। फिर एंड्रोकल्स धीरे धीरे उसके पास गया, पर जो लायन था वो तो मूव ही नहीं करा। वो तो बिजी था अपने एक पैर को चाटने में, क्योंकि उसके एक पैर के अंदर एक थॉर्न घुसा हुआ था। थॉर्न यानी कांटा।
Androcles slowly lifted the lion's paw. The lion roared and sat up, but Androcles did not let go. He pulled out the thorn. He tore a piece of cloth from his tunic and bandaged the paw. जो एंड्रोकल्स था उसने लायन का पैर उठाया और लायन उठ गया और उसने घुर्राया, यानी कि उसने हाय किया, पर एंड्रोकल्स ने जाने नहीं दिया। उसने उस कांटे को खींच लिया और उसने अपने ड्रेस में से एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े का निकाल लिया और बैंडेज कर दिया उसके पैर को। The lion did not hurt Androcles. Androcles decided to stay in the forest, but one day some soldiers passing through the forest caught him. Slaves who ran away from their masters were thrown in front of hungry lions. A large number of people came to watch this in an arena. Androcles too was brought into an arena where he had to face a hungry lion. A lion stepped out of a cage. It roared and leaped towards Androcles. The crowd cheered and clapped. Suddenly, the lion stopped. It looked at Androcles and started licking his face. The crowd fell silent. Androcles could not believe his eyes. He hugged the lion. It was the same lion that he had helped. The lion remembered the kindness. As people started clapping again, Androcles said, "An animal has been kinder to me than any human." The emperor set both Androcles and the lion free. The meaning of this is, जो शेर था उसने एंड्रोकल्स को चोट नहीं पहुंचाई। उसने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं एंड्रोकल्स के साथ। एंड्रोकल्स ने डिसाइड किया कि वो फॉरेस्ट में ही रहेगा, पर एक दिन कुछ सोल्जर्स थे जो फॉरेस्ट के पास से निकल रहे थे और उन सोल्जर्स ने देख लिया एंड्रोकल्स को। जो भी गुलाम थे जो अपने मास्टर से भाग गए थे, अपने मास्टर के साथ नहीं रहे थे, उनको भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया था। बहुत सारे लोग ये आए थे देखने। एक अरीना में, अरीना वो होता है जो एक बड़ी सी स्पेस होती है, उसके अराउंड सीट्स होती है। एंड्रोकल्स टू वॉज ब्रॉट इनटू एन अरीना। इसका मतलब है कि जो एंड्रोकल्स था उसे भी अरीना के अंदर लाया गया था। उसे भी एक भूखे शेर को फेस करना था। A lion stepped out of a cage. एक लायन था, वो अपने पिंजरे में से बाहर निकला। उसने घुर्राया और वो एकदम से जूम हाई किया एंड्रोकल्स की तरफ। और जो क्राउड था, मतलब जो भी लोग बैठे हुए थे, उन्होंने चीयर किया, यानी कि वू करके उन्होंने चीयर किया और क्लैप किया। और फिर एकदम से लायन स्टॉप कर दिया और उसने एंड्रोकल्स को देखा और उसका जो शक्ल था उसे चाटने लग गया। जो भी भीड़ थी वो चुप हो गई एकदम से। एंड्रोकल्स को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने एक शेर को हक कर रखा है। लेकिन वो ही लायन था जिसको उसने हेल्प की थी, और लायन ने उसकी काइंडनेस, यानी कि उसने जो भी मतलब इतने अच्छा काम किया था,
उसने याद रखा था। और फिर जो भी लोग थे वो फिर से तालियां बजाने लग गए। एंड रॉकल्स ने बोला, एक जानवर है जो मुझसे इतना काइंड हुआ है, इतने प्यार से उसने बात की है मुझसे। एक इंसान ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं की इतनी प्यार से। उसने इतने प्यार कभी नहीं जताया मेरे को। किसी इंसान ने मुझे कभी इतना प्यार नहीं जताया जितना इसने मेरे को जताया है। जो एम्परर था, यानी कि जो रूलर था, जो किंग था, उसने एंड्रोपल्स को और लॉयन को दोनों को छुटकारा दे दिया। खत्म कहानी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की तरफ काइंडनेस दिखानी चाहिए, यानी दयालुता दिखानी चाहिए। We should be kind towards others. Bye bye. See you again.